سر کائنڈلی یہ بتا دیں کہ انر پیس فار ایور کیوں نہیں ہوتا؟ انر پیس کا مطلب کیا ہے؟ انر پیس اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سینس جو میں آپ لے اس رہا وقت محسوس کرتے ہو جب کوئی بڑی اچیومنٹ پا لیتے ہو، ہے۔ اس کو انر پیس کہہ رہے ہو؟ یا آپ کچھ بھی کر رہے ہو جس میں اچیومنٹ ہو نہ ہو، ناکامی بھی ہو، لیکن اندر جو ہے نا کوئی پوائنٹ سٹل رہے؟ بیسیکلی انر پیس ایک حالت کا نام ہے، مائنڈ وداؤٹ اینی کانفلکٹ۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ لوجیکلی سمجھ میں آتی ہے۔ کانفلکٹ نہیں ہے تو باہر سچویشن ہے۔ انر پیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے، وائلنس انر ہے، ٹربولنس انر ہے، اسی لیے آپ انر پیس کہہ رہے ہو نا۔ باہر سے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ آپ لفظ ہی استعمال کر رہے ہو انر پیس، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے انر میں ٹربولنس ہے۔ کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس ہے وہاں پہ۔ ہاں، میں کہتا ہوں کہ انر پیس کا حصول کا مطلب یہ ہے کہ مائنڈ کانفلکٹ سے باہر ہو گیا۔ کانفلکٹ آپ نے کریٹ کیے ہیں، آپ کے مائنڈ نے کریٹ کیے ہیں۔ اب یہ چیز یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ لوجیکلی تو سمجھ میں آتی ہے، ان کے پر گزرتی ہے تب بھی انہوں نے یہ سوال کیا ہوگا کہ گزرتی اس طرح سے ہوئی کہ آپ کی ویڈیو سنتے میں بھی تھوڑی دیر کے لیے کانفلکٹ سے باہر حالت میں آ گیا مائنڈ، لیکن پھر واپس اسی کانفلکٹ ہاں، کی تو دور میں۔ اتنی اویئرنیس پہ رکھنی چاہیے نا کہ یہ ویڈیو سنتے سنتے آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے، اس پر ہی غور کر لینا، تو پھر آپ زندگی کے ہر کام میں وہ جو سمجھ اس سے پیدا ہوگی اس کو استعمال کر سکیں۔ مثال کے طور پہ آپ ویڈیو سن رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے یار یہ ریئلٹی ہے، گرو جی کیا اعلیٰ خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں جو قطعاً اعلیٰ خیالات نہیں ہیں، آپ کی روٹین کی عام زندگی کی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ بہرحال، اور آپ ایک شانت جگہ پہ بیٹھے ہیں، پیسفل جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ زندگی اصل میں تو جینے کے لیے ہے اور میں جی رہا ہوں، کم از کم اس پیریڈ آف ٹائم میں جس وقت آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں۔ باہر جب آپ گئے تب کیا واقعہ ہوا؟ مثال کے طور پر یہی مفروضہ جو آپ یہاں اپلائی کر رہے ہیں ایک سرٹن ایکو سسٹم کے لیے، سرٹن ایکو سسٹم میں جی میری آواز آ رہی ہے، یہ تو وہ ایک سرٹن ایکو سسٹم ہے جس میں میری آواز آ رہی ہے، یہ انفارمیشن آ رہی ہے، زندگی کا گریٹر جو پرسپیکٹیو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور آپ نے خود سے بھی یہ آرگو کر لیا ہے کہ ہاں یار ریئلٹی تو یہی ہے، زندگی کی ریئلٹی یہ ہے کہ میری زندگی کا جو تجربہ ہے وہ شاندار ہونا چاہیے، میں خدا کا اظہار ہوں۔ میں ان ریئلٹی نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اس وقت آپ نے یہی مفروضہ گھڑا ہے تبھی پیس کریٹ کیا ہے یہ ویڈیو سنتے ہوئے۔ اچھا، اب یہی مفروضہ اٹھائیں اور لے کے جائیں اپنے آفس میں۔ آفس میں آپ کے باس نے آپ کو ڈانٹا، آپ کے کلیگز کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا، پروموشن آپ کی ہونی تھی کسی اور کی ہو گئی۔ اب یہ بڑے بڑے کانفلکٹ یہی ہے نا ایک نوکری والے شخص کی زندگی میں۔ تو اب وہاں پہ جو ہے نا وہ جسے آپ کہہ رہے ہیں نا انر پیس، وہ کھو گیا ہے۔ وہ انر پیس جو یہ ویڈیو سنتے ہوئے موجود ہے، وہ انر پیس وہاں پر کھو گیا ہے۔ اب آپ نے یہاں کیا مفروضہ لگایا تھا؟ مفروضہ یہ لگایا تھا کہ یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، اصل چیز تو ہے مجھ پہ بیت رہا زندگی کا تجربہ وہ شاندار ہونا چاہیے، اور وہ اختیار ہر وقت میرے پاس ہے کہ میں آنکھ بند کروں اور شاندار ہو جاؤں۔ باقی جو میرے ایکشن ہیں، جو میرے تھاٹس ہیں، یہ ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں، ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ ٹھیک یہی مفروضہ آپ نے آفس میں بیٹھ کے آزمایا، ٹھیک ہے ابھی میری پروموشن نہیں ہوئی پھر ہو جائے گی، نہیں بھی ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھ سے کم درجے کے ملازمین اس دفتر میں موجود ہیں، دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو مجھ سے بھی کم تر معاشی سٹیٹس پر زندگی جی رہے ہیں، تو اس سے میری زندگی کے تجربے کو ایکچولی کیا فرق پڑے گا؟ اور یہ دوست ہے ناراض ہو گیا، اس سے جھگڑا ہو گیا ہے، یا باس نے ڈانٹ دیا، اٹس اوکے، یہ اس کی ٹریننگ ہے، یہ اس کی تربیت ہے، یہ اس کا بلٹ اپ ہے، وہ اس طرح کی پرسنالٹی ہے کہ دوسروں کے ایموشن کا خیال نہیں رکھتا۔ کیا میں ایک ایسی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر اپنا دن خراب کر دوں کہ جو خود ٹرینڈ نہیں ہے،
जबकि मैं समझ रहा हूँ कि मैं ट्रेंड हूँ, कि मैं सफदर साहब की वीडियो सुन के आया हूँ, सपोज एकार्ट टोले की किताब पढ़ के आया हूँ, लाओ त्सू को पढ़ा है, रूमी को सुना है, मैं जानता हूँ कि जिंदगी का जो तजर्बा है वो मेरे पास में है, मैं किसी भी वक्त शानदार फील कर सकता हूँ। तुम अगर खुद को ये समझ के बैठे हुए हो तो आज का दिन है, गुजर जाएगा, कल यही बॉस होगा, मेरे किसी काम पे मेरी तारीफ करेगा और मैं उस पर खुश हो रहा हूँगा। तो ये जो पल पल में बदल रही चीजें हैं, ये इस मुस्तकिल को खराब ही क्यों करें? क्या किया है आपने? वही मफरूजा उठा के वहां पे लगा दिया है। यहाँ इकोसिस्टम सपोर्टिव था, बातें भी उसी तरह की आ रही थी, वहां सपोर्टिव नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म आपके पास अब भी वही मौजूद है। क्या आप इस मफरूजे को वहां पर अप्लाई कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि आपने इनर पीस को, जब आपने ये मुतालबा किया ना कि मुस्तकिल क्यों नहीं है ये हालत, तो आपने क्या किया है कि इनर पीस बेसिकली वो हालत है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट कब नहीं होता? जब माइंड क्लियर होता है, जब डिजायर नहीं होता। डिजायर नहीं होती है। समझें डिजायर की एनाटॉमी क्या है। डिजायर का मतलब है कि ये हूं, ये होना चाहिए, ये है, ये होना चाहिए, ये मेरे पास है और ये मुझे चाहिए। है और चाहिए के दरमियान का फासला, आप दोनों जगह पर एक वक्त में फैल गए, ये स्ट्रेच है। ये ऐसे है जैसे किसी ने दोनों तरफ से आपको पकड़ के खींचा हुआ है। ये कॉन्फ्लिक्ट का आगाज है। 10,000 तनख्वाह है, 20,000 होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट शुरू। ये बच्चा शोर कर रहा है, शोर नहीं मचाना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट शुरू। मेरा घर ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट शुरू। मैं रहता हूं मैदानी पंजाब में, मुझे रहना चाहिए पहाड़ी शुमाली इलाकों में, कॉन्फ्लिक्ट शुरू। ये मेरी हालत है, ऐसी हालत होनी चाहिए, ऐसी हालत होनी चाहिए, ये आप कह रहे हो। आपने क्या किया? जिस पॉइंट पे आप हो, जिस पॉइंट पे जिंदगी है, जिस पॉइंट पे खुदा है, दिस मूवमेंट, उससे आपने अपने आप को अलग कर लिया। एक मुजव्वजा मफरूजा मुस्तकबिल में अपने आप को जाके धकेल दिया। यहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। डिजायर जैसे ही आपकी समझ में आई ना कि एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, उस वक्त आप उससे आजाद हो जाते हैं। बेसिकली आप कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मुख्तलिफ डिजायर, अपोजिंग डिजायर एक दूसरे के ऊपर काम कर रही हैं। अपोजिंग हो या सिमिलर हो, कुछ भी हो, डिजायर की नेचर यही है कि उसने कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना है। डिजायर इटसेल्फ ही कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि डिजायर ही कॉन्फ्लिक्ट है, आपकी वीडियो सुनते सुनते कुछ टाइम के लिए वो चीज़ें समझ में आती हैं और डिज़ायर ख़त्म हो जाता है, मगर बाद में फिर डिज़ायर आता है कि यार मुझे अब कॉन्फ्लिक्ट से आज़ाद होना है, ठीक है, बट है तो ये भी डिज़ायर ही, फिर बंदा कॉन्फ्लिक्ट से कैसे आज़ाद हो? अच्छा, जो बंदा समझता है ना डिजायर को, फर्ज करें आपने समझ लिया, अवेयरनेस की सतह पर अलर्ट रहते हुए इस मैकेनिज्म को समझ लिया, अब आप इससे आजाद हैं। क्या आप ख्वाहिश नहीं करेंगे? करेंगे। मतलब ये कहता हूं मैं, किसी ने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की डिजायर उसमें होगी तो ही बनेगा ना। जब आप डिजायर को तलाक देने के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, उससे डिस्कनेक्ट होने के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, ये आपके बेदार होने की अलामत नहीं है। ये बस इतना ही बता रहा है कि पहले आप चंद एक इंफॉर्मेशन की वजह से डिजायर को पकड़े हुए थे, अब चंद एक इंफॉर्मेशन दूसरी तरफ वाली आ गई है तो उसको छोड़ने के चक्कर में पड़ गए हैं। मैं कहता हूं इस मैकेनिज्म को समझना। आई एम मेकिंग समथिंग, आई एम टर्निंग समथिंग इनटू डिजायर, मैंने ढाली है ना, ठीक है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई डिजायर्ड इट, मैंने उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई और बैठ गया। लेकिन मेरा जो फोकस है, जैसे ही वो प्लानिंग वाला फेज खत्म हुआ, प्लानिंग फॉर फ्यूचर, स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर इज एक्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो इसमें एक चीज़ ये आती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है, ये चीज़ मेरी बनी थॉट्स से, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस से, इंफॉर्मेशन से आसपास की, और काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस किए, मैं डॉक्टर बन गया, ठीक है, मैं इसमें मौजूद है। अब क्या एक चीज़ यहाँ पर ये मैं देख रहा था कि जितनी देर तक मैं किसी भी चीज़ के साथ अटैच है, मैं डॉक्टर हूँ,
मैं इंजीनियर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, उतनी देर तक बेशक मैं कुछ भी कहता रहूँ कि मैं कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा रहूँगा क्योंकि मैं उसके साथ अटैच है। जितनी देर तक मैं किसी भी चीज़ के साथ अटैच है, उतनी देर तक वो कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा, क्योंकि मैं इटसेल्फ और कोई चीज़ है नहीं, मैं भी एक थॉट ही है। और थॉट क्या चीज़ है? ये सारे एक्सपीरियंसेस मिलके एक थॉट बना रहे हैं और आइडेंटिटी बना रहे हैं मैं की। तो मैं बेसिकली कुछ भी बनने की कोशिश करे, या तो महदूद रहेगी, और महदूद कोई भी चीज़ है वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहेगी। बेशक वो अपने आप को परसीव ऐसे करती हो कि मैं ये मैं कहता हूँ कॉन्फ्लिक्ट में कि नहीं एक फर्ज कर लें एक आइडियल स्टेट, एक आइडियल इनलाइटेंड स्टेट को फर्ज कर लें कि जिसमें आपके अंदर कोई डिजायर रह ही नहीं गई, कोई भी डिजायर। अब इंसान को सोचें, इंसान एज स्पीशी सोचें, वो क्या कर रहा होगा? आई डोंट नो। चलें इसको दूसरे एंगल से समझें। ये भी आपके सामने गिलहरियां दाना दुनका चुग रही थी, ये कव्वे बैठे थे, बहुत से परिंदे यहाँ बैठे थे। क्या ये डिजायरस मखलूक हैं? क्या इनके यहाँ मतलब आपके पास जो मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पर, बजाय इसके कि गहरा उतरे, उसकी बुनियाद पर अगर नतीजा निकालें तो क्या लगता है कि इनमें ख्वाहिश काम करती होगी? नहीं, ख्वाहिश उस तरह से नहीं, जिस अगर ख्वाहिश हम कहते हैं थॉट को, जिस तरह हम अपनी जिंदगी में ख्वाहिश की एक्टिविटी को देखते हैं, उस तरह इनकी जिंदगी में ख्वाहिश काम करती हुई नजर आ रही है। हाँ, उस तरह से तो नजर नहीं आती, क्योंकि वो रूटीन है, रोज ही ये करते हैं। ख्वाहिश का मतलब ये है कि मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा हूँगा, मैं दुकानदार हूँ, मैं फैक्ट्री के ऑफिस में बैठा हूँगा। ठीक, और पहुंच जाते हैं, लोगों की बड़ी तादाद है जो पहुंच जाती है अपनी मतलूबा ख्वाहिशों पर। ये हमेशा से ऐसे हैं, हमेशा ऐसे चले आ रहे हैं, इनका रोज एक जैसा होता है। अगर आप यहाँ बैठ के इतने दिन से आप देख रहे होगे, गिलहरियों की रोज की यही एक्टिविटी है। निकलेंगी, दाना दुनका चुगेंगी, फिर कहीं से कोई आवाज आएगी, कहीं से कोई पैरों के खड़खड़ाहट आएगी, ये जाके अपने घर में बैठ जाएंगी, फिर थोड़ी देर के बाद खामोशी आएगी, फिर उतरेंगे। ये इनका काम है। तो वहां ख्वाहिश वैसे काम करती नजर नहीं आ रही ना, तो वो भी तो एक्ट कर रहे हैं। आप यही चाह रहे हो ना, आपने वो स्टेज हासिल कर ली जहां आप में डिजायर उभर ही नहीं रही। मैं कह रहा हूं कि अब इंसान क्या कर रहा होगा? मैं भी एक्ट कर रहा होगा ना, एक्ट कर रहा होगा, लेकिन सोच रहा होगा ना। अच्छा, अब हमारा एक्शन, हमारी सोचें एक पल में शिफ्ट होती हैं फ्यूचर में। मैं ये सेब उठा के खाने लगा हूं, इससे मुझे फलां फलां विटामिन मिलेगा। इस वक्त के एक्ट में तवज्जो नहीं रही। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसका ये नतीजा निकलेगा। मैं ऑफिस में बैठा फलां काम कर रहा हूं, इसके नतीजे में मुझे ये चीज मिलेगी। तो आप कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। वो अगर अपने एक्शंस डिजायरलेस सतह पर कर रहे हैं, आप क्यों ये सोचते हैं? बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि जी आप डिजायर की मुखालफत करते हैं। इंसान में डिजायर ही ना रही तो मोटिवेशन ही नहीं रहेगी मूव करने की। आपने ये क्यों सोच लिया है कि मोटिवेशन नहीं रहेगी? जिंदगी इन इटसेल्फ मोटिवेशन नहीं है। मैं यहाँ फूल खिला दूं, ये जगह खूबसूरत लगेगी, अब ये डिजायर टाइप ही चीज लग रही है ना, लेकिन ये आपकी जिंदगी के तजर्बे के लिए, सिर्फ जमालियात के लिए है, उसके साथ कोई और चीज आप जोड़ नहीं रहे। कह रहा हूं कि आप डिजायर करने के मैकेनिज्म के साथ पैदा हुए हैं, सोचने की सलाहियत के साथ पैदा हुए हैं। ये आपकी मजबूरी है स्पीशी, ह्यूमन स्पीशी होने के तौर पर। आपने जो डेवलप किया है विद द पीरियड ऑफ टाइम, जो चीज आपने अंदर डेवलप की है, वो ये है कि जिंदगी को जीने की बजाय जिंदगी की तैयारी में खपना शुरू हो गए हैं। फ्यूचर पे इतना फोकस दे दिया, डिजायर पे इतना फोकस। डिजायर एज अ स्ट्रेटेजी इस पल की एक्टिविटी है, आप उसको जीना शुरू कर दें, इन कदमों को मिस कर दें तो क्या करेंगे? उस मंजिल का आपने अचार डालना है। आप सारी जिंदगी जिए और जी के एक मकाम पर पहुंचे जिस मकाम का नाम है मौत।
तो क्या आप मरने के लिए सिर्फ जिए जा रहे थे? हुस्न, जिंदगी का हुस्न ये था ना कि ये जितने स्टेप वहां तक पहुंचने वाले थे, इन सारों को एंजॉय करते। यकीन करें, आप जब उस मकाम पर पहुंचते ना जहां मौत होनी है, तो आप कहते कि हाँ, मैंने जिंदगी को जिया, मजा आ गया। तो ये चीज आप में नेचुरल है। मैं जिस चीज पर जोर दे रहा हूं ना, वो सिर्फ एक बात है, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर होने का एक ही तरीका है। इस डिजायर के काम करने के तरीके को जब आप समझ जाते हैं ना, तो फिर आप इसे अपने लिए यूज करने के काबिल हो जाते हैं। डिजायर मुझ में पैदा होती है क्योंकि मैं एज अ स्पीशी ऐसे बना हूं, मैं ऐसे पड़े पड़े मर जाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। हाथ पैर, सोचने की सलाहियत, ये सारी चीजें इस कुल स्कीम ने मुझे दी हैं, तो इनका कोई पर्पस है। ठीक है, आप डिजायर में फंस जाते हैं जब ना, तो इसको जीने के काबिल नहीं रहते। ये जो आपके पास शार्ट पैसेज है ना, जिसमें जिंदगी वाक़ई हो रही है, ये पल, उससे आप जितना दूर जाएंगे उतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। डिजायर आपके वो काम है जो आप कर रहे हो मगर आप करना नहीं चाहते। ये अपनी बेसिक नेचर में गलत रवैया है, यानी कि आप एक काम कर रहे हो और करना नहीं चाहते। कॉन्फ्लिक्ट और किसे कहते हैं? ऑब्वियसली दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट ना। तो अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर मैं एक काम करना नहीं चाहता लेकिन मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कॉन्फ्लिक्ट से भी आजाद होना है, तो मैं वो काम करना छोड़ दूँ? ठीक है, मतलब मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ, मुझे करना ही नहीं काम पसंद। करना छोड़ देना इन इटसेल्फ एक काम है। हाँ, लेकिन अगर मुझे वहाँ पे पीस मिलता है तो मैं क्यों ना छोड़ूं? अगर आपको पीस मिल रहा है, फर्ज करें आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आपकी पीसफुल स्टेट है, आपको मजा आ रहा है और आपने ऑफिस जाना है, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं ऑफिस जाना छोड़ दूं? आपने ये भी देखा ना कि यार ये तो ख्वाहिशात की दौड़ है, ये तो इसका कोई एंड नहीं है। मैं इतने पैसे कमा भी लूँ, इतनी फैमिली को खुश कर भी लूँ, तो इसका क्या? ठीक है, वो डिजायर उसी तरह चलती रहेगी, लूप में चलती रहेगी। आप डिजायर क्या कर रहे हैं? डिजायर कर रहे हैं डिजायर से आज़ादी। एक वक्त आएगा जब मैं डिजायर से आज़ाद हो जाऊंगा। उसका तरीका यह है कि मैं बैठ के सारा दिन मेडिटेशन करता रहूं, मैं सारी की सारी एक्टिविटी को छोड़ दूं। आप डिजायर से एक आजाद और हो गए। डिजायर के लिए कुछ और किस्म के काम हैं जो आप कर रहे हैं। नहीं, आपने ये देख लिया लॉजिकली कि इन चीजों का कोई फायदा नहीं है और ये चीजें डिजायर पैदा करती है, और लॉजिकली में भी आपका कहाँ कभी फायदा आंसर नहीं है? ये मैंने कब कहा है कि फायदा नहीं है? मैंने कभी नहीं कहा कि पैसे कमाने का फायदा नहीं है। नहीं, आप देख रहे हो। मैंने मतलब कभी नहीं कहा कि नौकरी करने का कोई फायदा नहीं है। एक इंसान ये देखता है कि यार ये ख्वाहिशात का कोई एंड नहीं है, ठीक है, और ख्वाहिशात का कोई एंड नहीं है, ये ख्वाहिश को छोड़ना लाजिम नहीं करता। फिर वो ये आप ये क्वेश्चन करता है, जो ख्वाहिशात मुझे पसंद नहीं है, चलो मैं उनके साथ जो काम मुझे करना मुझे पसंद नहीं है, तो वो तो मैं छोड़ सकता हूँ ना, उनके बिना भी मैं सरवाइव कर ही सकता हूँ। तो वो कहता है मैं अपनी नौकरी को छोड़ता हूँ। हाँ, ठीक है, मुझे करना पसंद नहीं है, मैं क्यों करूँ फिर? हाँ, अब उस बंदे को बिठाएं, उसे कहें कि किस नौकरी करना आपको पसंद नहीं है, आपको मेडिटेशन करना पसंद है। फर्ज करें मैं एक मुकाबला कर लेता हूँ, अब आप कितने दिन तक इससे बोर नहीं होंगे? ये एक डिजायर की नेचर यही है, शक्ल ऐसे ही बदल रही है। नौकरी कर रहा हूं, किसी वक्त आएगा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, इस मुसीबत से जान छूट जाएगी। मैं ये कहता हूं कि डिजायरलेस हालत पता क्या है? कि नौकरी करनी पड़ रही है ना, आपको फिनोमिना है, फैमिली है, घर है, जरूरतें हैं, चलो आपको अच्छा जीना है, आपको बड़े घर में रहना है, अच्छी गाड़ी में रहना है, उसमें कोई मसला नहीं है, उसको भी डिजायर बनाने में। उसको जियो तो सही, उसको कॉन्फ्लिक्ट के साथ ना जियो। मैं कहता हूँ पूरे का पूरा जी लो उस डिजायर को। ये जो लोग कामयाब बन जाते हैं ना इस मटेरियल दुनिया में, वो छोड़ देते हैं इर्द गिर्द के सारी चीजें, उस ख्वाहिश को वो इतनी शिद्दत से पकड़ते हैं ना कि वो ख्वाहिश वहां की नहीं रहती। जो सही तौर पे पैशनेट लोग होते हैं ना, वो एक स्टेप भी चल रहे हो ना, तो उनको उस वक्त उस स्टेप को जीते हुए भी ना मंजिल को जीने का एहसास होता है। वो जो एंड पॉइंट है जिसे आप डिजायर बना रहे हो ना, वो उस वक्त भी उसको जी रहे होते हैं। चलो ये नहीं कर सकते तो ये कर लें कि मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कुछ सोच के ही, एक ख्वाहिश के तहत, एक स्ट्रेटेजी के तहत ही गए होंगे ना इस रास्ते पर कि मैंने एक नौकरी करूंगा तो ये कुछ हासिल होगा, एक अच्छा घर होगा, अच्छा खानदान होगा, बच्चों को अच्छे से पालूंगा, बैठ के घर में एंजॉय करूंगा, शाम को लॉन में बैठूंगा, कॉफ़ी पीऊंगा बच्चों के साथ, तो मज़ा आएगा।
तो उसको फिर इतनी शिद्दत से जियो ना कि वो सारी की सारी चीजें उस वक्त आपको फील हो रही हों। या इस पॉइंट को उड़ा दो जहां से ख्वाहिश हो रही है, या उस पॉइंट को उड़ा दो जहां पे ख्वाहिश रखी हुई है। दोनों सूरतों में कॉन्फ्लिक्ट मिटेगा। आप ये कह रहे हो कि एक्शन से आजाद हो जाऊं, मैं कुछ करूं ही ना, मेरा आपका दिल कर रहा है कि मैं नौकरी पे क्यों जाऊं, नहीं मेरा तो आप कुछ और कर रहे होगे, आप उससे भी आप एक वक्त आएगा बोर हो जाओगे। मैं वो करूं जो मेरा दिल करता है, ना कि वो जो मेरा दिल नहीं दिल करता। ही तो डिजायर है, जिसे आप दिल कह रहे हो, ये डिजायर है ना। तो आप डिजायर से आजाद थोड़ी हुए हो, आप थक गए हो, आप बोर हो गए हो। सिंपल सी बात है, आप उस कॉन्फ्लिक्ट में रह रहे कर अब उससे भागना चाहते हो, लेकिन भाग के किसी और चीज को पकड़ रहे हो, और वो चीज भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी। कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने का जो मकाम है वो आपके अंदर मौजूद है। मैं कहता हूं आप जो भी कर रहे हो, चलो मजबूरी के तहत कर रहे हो, मजबूरी है, मुझे पैसे कमाने हैं घर वालों को पालने के लिए, मजबूरी के तहत भी कर रहे हो, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट के बगैर हो सकता है। उसको जी लो पूरे का पूरा, एक एक पल को जी लो, ऑफिस का एक एक पल, दुकान का एक एक पल जी लो। कोशिश करके इंगेज कर दो खुद को, इतना इंगेज कर दो कि आपके पास मुस्तकबिल में ट्रैवल करने का टाइम ही ना हो। इतनी दिलचस्पी के साथ कोई चीज़ कर ली जाए। अगर आपने ज़िंदगी में कभी कोई काम ऐसे किया है जिसमें आप पूरे के पूरे डूबे हुए थे, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वहाँ इनर पीस होगा। अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप तो डूबोगे, अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप डूबोगे क्यों? इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट उठने का मतलब क्या है? तुमने नौकरी चुनी, तुमने चुनी, तैयार होकर इंटरव्यू देने गए थे, जब मिली थी तो पूरे दोस्तों को पार्टियां दे रहे थे, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहे थे। दैट वाज यू। अब आप थक गए हो, आप हर जगह थक जाओगे क्योंकि आपने कॉन्फ्लिक्ट का बीज संभाल के रखा हुआ है। यानी कि आप कहते हैं कि अगर मैं नौकरी छोड़ भी देता हूँ, मैं असल में ये कहता हूं कि एक्शन का लेना देना ही नहीं है आपकी हस्ती से। एज अ स्पीशी आप एक्शन करते रहोगे कुछ ना कुछ, उसके साथ जो मतलब मानी आपने जोड़ रखे हैं ना, ये एडिशनल हैं। वो मानी एडिशनल नहीं है, वो आपने दे रखे हैं, उनको और मानी दे सकते हो। कतन जरूरत नहीं है फ्यूचर में हर वक्त फ्यूचर ट्रैवल करते, टाइम ट्रैवल में हर वक्त घूमने की जरूरत नहीं है। टाइम इन्वॉल्व कर लिया ना आपने, सुबह सुबह उठ के बैठा कि आज मैंने ये करना है, उसके बाद उठ के आप वो इतनी शिद्दत से करना शुरू कर दें कि कॉन्फ्लिक्ट को मौका ही ना मिले। मगर आपने एक दुनिया बना ली है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश मौजूद है। आपने अपना माइंड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आपने अपना तशख़्ख़ुस, ईगो, पर्सोना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और ये सारी चीज़ें जीती ही कॉन्फ्लिक्ट के बल पर हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब आप अपनी तरफ लौटते हैं और अपने साथ बैठते हैं और चंद ज़रूरी सवाल उठाते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए से मैं ज़िंदगी को परख रहा हूँ, ये जहाँ डिज़ायर्स बन रही हैं, ये जो मुझे बार बार लम्हे मौजूद को स्किप कराती है चीज़, ये मैकेनिज़्म कहाँ है, ये मैकेनिज़्म क्या है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, यहाँ से आपकी स्मार्टनेस का सफ़र शुरू होता है। आप क्या कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि बैरूनी दुनिया के जो एलिमेंट्स हैं ना, वो किसी तरीके से रिप्लेस हो जाए, नौकरी की बजाय अपना बिजनेस शुरू हो जाए। तुम अपने बिजनेस में भी बोर हो जाओगे, तो कुछ नहीं कर रहे हो, जहां बोर हो जाओगे। मेरे पास मैं जहां पे खड़ा हूं ना, मैं वहीं से सफर शुरू कर सकता हूं। तुम खड़े हो यहां पर जहां कॉन्फ्लिक्ट है, जहां डिजायर्स हैं, जहां डिप्रेशन है, जहां एंजाइटी है, जहां थकावट है, यहां से चलना है तुमने। तो यहां इस वक्त जो तुम्हारे पास एसेट्स मौजूद हैं, और यकीन करो सारी की सारी चीजें एसेट्स हैं, डिजायर भी एसेट है, स्मार्टली जीना आ गया तो। मैं एक मिसाल देता हूँ, हमेशा दिया करता हूँ, आपकी वीडियो में भी कई दफा दी है, एक दफा फिर देता हूँ। दो लोग यहां पर बैठे हैं, ठीक है, तुम हो करोड़पति और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। सामने से एक मर्सिडीज गाड़ी गुजरी, तुम्हारे अंदर ख्वाहिश उभरी, ये गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, तुम्हारे बैंक में पैसे हैं, क्या होगा? फौरन उठ के ले आऊंगा, फौरन खरीद लोगे। डिजायर करने वाली जगह और होने वाली जगह दोनों एक जगह पर आ गए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं उभरेगा। अच्छा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे अंदर डिजायर जागी, मैं क्या करूंगा? मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये लेनी दो पड़ेगी। रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, अब ये कैसे आएगी, मेरे पास तो वसाइल नहीं है। आप देख रहे हैं मेरा सफ़र, ये नेगेटिव सफ़र की बात कर रहा हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं
कहीं से फ्रॉड करूं, क्या चीज़ बेचूं, किसको चूना लगाऊं, ये आज की आपकी ज़बान है, किस तरीके से मेरे पास इतना पैसा जमा हो जाए। देख रहे हैं, मैं उस डिज़ायर के साथ शिद्दत से इन्वॉल्व हो गया हूँ। टाइम फ्रेम है, सिर्फ टाइम फ्रेम। दूसरा रवैया मैं ये करता हूँ, हाँ ये गाड़ी ठीक है, मुझे पसंद है, ये मैंने गाड़ी लेनी है, मैं उठा और काम में जुट गया। जो भी मेरे मसरूफियात हैं उनमें और ज़्यादा इंगेज हो गया, उनको और ज़्यादा पैशन के साथ करने लगा। तो क्या होगा कि 10 साल बाद मेरे पास वो गाड़ी आ गई। कॉन्फ्लिक्ट मैंने क्रिएट नहीं किया, मैंने सीधा सीधा उठा। अब क्या हुआ, तुम सिर्फ टाइम फ्रेम में फंसे हो। तुमने ख्वाहिश की 10:05 पर और 10:06 पर वो ख्वाहिश पूरी हो गई। मैंने ख्वाहिश की आज 10:05 पर और आज से 10 साल बाद 10:06 पर मैंने वो ख्वाहिश पूरी कर ली। अब ये टाइम है जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। हालांकि मैं और आप दोनों ही उस गाड़ी को हासिल करने में कामयाब हो गए। उस वक्त मैं गाड़ी को हासिल करने में कामयाब हो गया विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। अगर उस डिज़ायर को हासिल करने के सफ़र पर चल पड़ा, सफ़र को एंजॉय करता हुआ जा रहा हूँ, वो उसको मैं वैसे ही जी रहा हूँ जैसे होता है ना कि यार एक जिम में एक लड़का एंटर होता है और वो कहता है मैंने जॉन सीना बनना है। ठीक है, वो पहले दिन गया, पहले दिन उसी मस्ती से जी रहा है जैसे वो जॉन सीना है। वो उसके हर पल वैसे ही जी रहा है, और हर एक्शन वैसे हर रोज गौर से देखें तो वो बंदा जिसको गाड़ी उस वक्त मिल गई, उसके लिए उस गाड़ी की वर्थ कम है। जिसने उसको लंबे अरसे तक ना घोंट घोंट पिया है, उसके लिए उसकी वर्थ ज्यादा है, उसके लिए वो ज्यादा गाड़ी इंजॉयबल रहेगी। वो लड़का जो थोड़े थोड़े अपने मसल इंप्रूव कर रहा है, थोड़ी थोड़ी अपनी बॉडी को बिल्ड कर रहा है, वो उसके लिए वो सफर ज्यादा रोमांटिक है। अच्छा, अब ख्वाहिश को हासिल करने और उसकी थॉट मैनेजमेंट में ही पड़ जाना, ये है कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्रेटेजी बना लेना और उसके पीछे चल पड़ना, ये है कॉन्फ्लिक्ट से बिना उसी ख्वाहिश के पीछे चलना। मतलब मेरे पास एसेट यही था, मैं एज अ स्पीशी दुनिया में मौजूद इस तरह से था कि मेरे पास सोचने की सलाहियत थी, मेरे पास एक्शन की सलाहियत थी और मेरे पास डिज़ायर करने की सलाहियत थी। क्योंकि मेरे पास दो बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेमोरी है, मेरे पास स्टोरेज है जिससे मैं माजी से सीखा हूँ कहाँ से ज़्यादा पैसे आ सकते हैं, कहाँ कम होते हैं, XYZ गाड़ी की मिसाल को सामने रखते हुए। और मेरे पास फ्यूचर है कि दुनिया में लोगों ने अचीव की हैं चीज़ें, तो कैसे अचीव की हैं, मैं इस रास्ते पर चलूँगा, मुझे कॉन्फ्लिक्ट की ज़रूरत नहीं है। 10 साल बाद तो मैं गाड़ी चला ही रहा हूँगा। इस अप्रोच के साथ जाओ तो हो सकता है आपको ज़्यादा, इतने हल्के फुल्के अगर जाओ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेंगे उस गाड़ी तक पहुँचने में, अचीव करने में। क्यों? क्योंकि आप बोझल नहीं हो ना, आपने एनर्जी को बांटा हुआ नहीं है। एक यहाँ पे ये भी अंडरस्टैंडिंग खुलती है कि ख्वाहिश और टाइम एक ही चीज़ है। टाइम में मूव कर रही एक चीज़ है ना ख्वाहिश, क्योंकि ख्वाहिश तो होती ही ना। मिसाल के तौर पर मैं एक सपोजिशन बनाता हूं कि इंसान कभी मरता ही ना। आपके पास टाइम लिमिटेशन है ना, जिसकी वजह से ये सारा खेल चलता है थॉट्स का और डिजायर्स का। अगर आपने कभी मरना ही ना होता तो क्या आप कोई ख्वाहिश कर पाते? ख्वाहिश का मतलब ही नहीं था, फिर मतलब ही नहीं है। मैं यहाँ से हिल के यहाँ भी बैठना क्यों पसंद करता? पहाड़ ऐसे करता है, वो हिलना भी पसंद नहीं करता। उसे पता है कि वो ना अब्दुल्लाबाद है, या कम अज कम इतने टाइम पीरियड के लिए है कि वो बेतहाशा है। आप जब टाइम में मूव करते हो, लेकिन अगर आपके पास ये अवेयरनेस हो कि मैं लाइफ बेसिकली तो वही कॉन्शियसनेस हूँ जो इस वक्त इस बॉडी और माइंड के साथ एक्सप्रेस हो रहा है, और इस बॉडी और माइंड ने कुछ चीजें इकट्ठी की हैं, कुछ डिजायर्स इकट्ठे की हैं। हाँ, ये शऊर का इस पॉइंट पे मुर्तकिज हो जाना है और इस मैकेनिज्म का शऊर के साथ मिलकर मैकेनिज्म का काम करने का तरीका ये है। जैसे मिसाल के तौर पे करंट आ रहा है, करंट सेम है, करंट इज कॉन्शियसनेस, वो सेम है। वो फ्रिज के पास पहुंचेगा तो ठंडक में बदल जाएगा, क्योंकि मैकेनिज्म ऐसा है। जब भी आप फ्रिज को करंट देंगे तो वो बर्फ बनाएगा, ठंडक पैदा करेगा। वही करंट आप दे दें हीटर को, क्या करेगा? गर्मी देगा, और पैदा करेगा, चीजें उबालने के लिए, इस मकसद के लिए काम आएगा। आप असल में वो करंट हो जो मिटता नहीं, जो पैदा नहीं होता, और एक्सप्रेस हो रहे हो आप इस टूल के जरिए से। तो फ्रिज को मसला नहीं है, फ्रिज के तौर पर काम करने में सिर्फ इंसान को मसला है। आपने कहा ये करंट पैदा नहीं होता और मिटता नहीं है,
یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ میں نے چیز کیسے جان- نکال لیا مفروضہ؟ یہ چیز ہم کیسے جان سکتے مجھے یہ بتاؤ، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ پیدا ہونے سے پہلے تم زندہ نہیں تھے؟ ہیں؟ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس کی میموری نہیں ہے، میں جانتا نہیں. صرف میموری نہیں ہے. ہاں. فریج کے پاس یہ میموری نہیں ہے کہ کرنٹ جو ہے نا یہ عبدالآباد سے ہے، یہ اس کائنات میں دریاؤں کی صورت میں موجود ہے، ونڈ کی صورت میں موجود ہے. جیسے آپ آج کل بجلی بنا رہے ہیں سولر پینلز کے ذریعے سے، اس انرجی کو ٹیپ کر رہے ہیں، تو یہ ہر وقت موجود ہے نا. کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ سولر پینلز اگر دریافت ہوتے آج سے 1 کروڑ سال پہلے تو یہ انرجی نہ بناتے؟ وہ کرنٹ بناتے نا، کیونکہ کرنٹ آلویز موجود ہے. تو یہ کانشیسنس موجود ہے، آپ کے پاس میموری نہیں ہوتی. فریج بننے سے پہلے کی میموری نہیں ہے آپ کی اس شیپ میں اس دنیا کے ساتھ جو آپ کا رابطہ ہے نا، اس کی میموری نہیں ہے اس سے پیچھے. وہ مولانا رومی کہتے ہیں کہ بچے کو ماں کی کوکھ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ دیکھو باہر ایک دنیا ہے، اس میں دریا ہیں، اس میں پہاڑ ہیں، اتنی وسیع دنیا ہے، اس میں پرندوں کی چہچہاٹ ہے، گلاب ہیں، گلابوں کی خوشبو ہے، اس میں اتنے رنگ ہیں، اتنے دریا ہیں سمندروں میں، اتنی رنگ برنگی مچھلیاں ہیں. تو بچہ کہتا ہے نا یہ ہے دنیا. اب وہ کتنی مختصر سی دنیا ہے. پھر وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور دیکھتا ہے اور کہتا ہے ہاں یار یہ ہے. اس کے ساتھ پھر جڑتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ یہاں پہ گزارتا ہے. تو اسی کو پھر وہی تقدس دیتا ہے جو ماں کے پیٹ کو تقدس حاصل تھا. دیکھتے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، اس دنیا کو چھوڑنے کا دکھ ہوتا ہے. جیسے آپ اس دنیا میں مرتے ہیں اور اس وقت ڈپریس ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہے، لیکن آپ کا پیدا ہونا بتا رہا ہے کہ کوئی کرنٹ ہے جو بہتا ہوا آگے آیا ہے. اور یہ آپ یہاں پر روک کیسے سکتے ہو؟ کیوں روک رہے ہو؟ سولر پینل آپ کروڑ سال پہلے دریافت کر لیتے تو یہ تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سولر پینل اگر ہمارے پاس ہوتا تو انرجی ٹیپ ہو سکتی تھی سورج کی. اگر ونڈ مل لگانا آپ کو آتی تو ونڈ کی انرجی آپ ایکسپلائٹ کر سکتے تھے پہلے بھی. یہ تو مان رہے ہو کہ وہاں پہ انرجی موجود ہے. یہ کانشیسنس کی انرجی کیوں نہیں ماننے میں آتی؟ یہ بالکل اسی طریقے سے میں سمجھ پا رہا ہوں جس طریقے سے میں زندگی کی باقی چیزوں کو سمجھتا ہوں. یہ میرا آرگومنٹیشن ہے، جو انٹلیکٹ ہے، جو میرے دماغ کام کرنے کی صلاحیت ہے. یہ سوال اسی انٹلیکٹ، اسی سمجھ، اسی ماضی کی میموری، ماضی میرے مائنڈ کے کام کرنے کے طریقے، جس طرح سے میں نے باقی ساری چیزوں کو سمجھا ہے، اسی طریقے سے یہ اس کو سمجھ رہا ہوں. کانشیسنس کبھی پیدا نہیں ہوا، کبھی مرے گا نہیں. یہ مسلسل ہے، یہ آگے چلتا رہے گا. اور جب یہ سمجھ آتی ہے تو ایکچولی میں آپ سیکیور فیل کرتے ہو اور پھر انر پیس فار ایور. انسیکیورٹی اسی میں تو ہے نا کہ میں مر جاؤں گا. سب سے بڑی انسیکیورٹی تو یہی ہے. وہ انسیکیورٹی ہے جو باقی انسیکیورٹیز کو جنم دے رہی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ اسٹرانگ پلر آ جائے، ایک مضبوط سہارا، ایک اینکر، تو آپ کی انسیکیورٹیز مٹ جاتی ہیں. انسیکیورٹیز مٹ گئی نا، مجھے مٹنے کا خوف نہیں، مجھے تباہ ہو جانے کا خوف نہیں، میری زندگی کے تجربے کو کوئی بھی چیز ایکسپلائٹ نہیں کر سکتی. یہ میرے اندر اگر کانفیڈنس آ گیا ہے تو کوئی ڈیزائر کام کر رہی ہے یا کوئی بھی چیز کام کر رہی ہے، انر پیس کو وہ ہلا نہیں سکتی. تو آپ کا انر پیس جو ہے نا وہ مستقل ہو جاتا ہے. مستقل ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ سچویشنز ایک جیسی بہنا شروع کر دیں گے. سچویشن چلتی پرندے نہیں بن جائیں گے آپ کہ روز اڑیں گے، روز دانہ دن کا چنیں گے، روز گھونسلے میں بیٹھ جائیں گے، روز اڑیں گے، دانہ دن کا چنیں گے. آپ ایسے ہی کام کرو گے، ایکسپلور کرو گے، انوینٹ کرو گے، سائنسی ایجادیں کرو گے، دریافتیں کرو گے، زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل دو گے، رہنے سہنے کے طرز بدل دو گے، کچھ سے کچھ ہوتے جاؤ گے. یہ تمہارے ایکسپریس ہونے کا طریقہ ہے. کانشیسنس اس باڈی اور مائنڈ کے ساتھ جب کنیکٹ کرتی ہے تو وہ ایکسپریس اسی طریقے سے ہوتی ہے. آپ کو پوری اسکیم نے، اس ان مینیفیسٹڈ نے آپ کو مینیفیسٹ اس طرح کیا ہے، آپ آشکار اس طرح ہوئے ہیں، لیکن آپ کا جو ایسنس ہے اب بھی وہی ان مینیفیسٹڈ ہے. آپ کی یہ ساری تھنگنیس ہے نا اب بھی جڑی ہوئی اسی نتھنگنیس سے. تو یہ جب آپ کے پاس آتا ہے نا، یہ اگر یہ اویئرنیس کی سطح پر یہ حقیقت آپ کے ساتھ ایک ہو جائے تو پھر انسیکیورٹیز ختم، کانفلکٹ ختم، ڈیتھ کا فیئر ختم، فیئر ختم. ہر وہ چیز جو کانفلکٹ پیدا کرے وہ ختم. اور کانفلکٹ مٹنے کا مطلب یہ ہے کہ انر پیس آپ کے پاس ہر وقت دستیاب ہے. تو انر پیس اس صورت میں مستقل ہے ایز اے ریئلٹی آن گراؤنڈ
ऑन सिचुएशंस लेवल ये डामाडोल होता रहता है तो होता रहे, लेकिन आपको अगर मैकेनिज्म का पता है, ठीक है, आप एक हेक्टिक दिन गुजार के आए और आप आके अपने बिस्तर पे बैठे, अपनी गोशे आफियत में बैठे, किसी पार्क में बैठे और आंखें बंद की और आप कनेक्ट हो गए। कनेक्ट ये नहीं कि किसी कोई चीज खुद इमेजिन करके बैठे हुए नहीं वो तो फिर एक इमेजरी है ना आपकी। फिर एक और ड्रामा चला दिया आपको आप अपने साथ कनेक्ट हो जाए ना, मैं जिंदा हूं और सांस ले रहा हूं, इट इज इनफ, क्योंकि मैकेनिज्म आपके पास मौजूद है। दौड़ने का वक्त था, आपने दौड़ लिया, रिलैक्स करने का वक्त है, आप रिलैक्स कर लेंगे। अच्छा दौड़ने वाला अच्छा रिलैक्स करना जानता है। आपकी दौड़ की खराबी है जो आप सही तरीके से रिलैक्स भी नहीं कर पाते। दौड़े ठीक तरीके से नहीं हो, ठीक तरीके से मिसाल के तौर पे एक बंदा दौड़ के आया है, ऑफिस में था, एसी ऑफिस में बैठा था, सीईओ था, कुछ भी नहीं करना था, उसने 4 साइन मारने थे, 2-4 फोन कॉलें करनी थी, लेकिन उसका दिमाग कितना चलता रहा, ये कोका कोला वाले आगे निकल रहे हैं, ये वेव्स वाले आगे निकल रहे हैं, वो कंपनी मेरे से आगे निकल रही है, समझ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट। और एक मजदूर है जिसमें मैंने मजदूरी करनी है, शाम को खाना पकाना है, वो सही तरीके से खपा है, मजदूरी में खप गया है। ये मजदूरी में जो खपा है, ये वो बंदा भी ये काम कर सकता है एग्जैक्टली। वो जो ऑफिस में बैठा है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से कर सकता है। वो सही से थकता है, सही से आकर रिलैक्स करता है, वो नफ्सियाती आरजू में मुब्तला नहीं होता। वो अगर सही तरीके का मजदूर है, जैसा कि हकीकतन होना चाहिए, हर इंसान को जैसा होना चाहिए, वो करोड़पति भी ऐसा हो सकता है। वो ये सिर्फ मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, इसमें ग्रैंडर नहीं है मजदूर होना। मजदूर है और दिमाग चल रहा है तो वो तो दोहरी अजियत सह रहा है ना। ऐसे ही एक है। तो उसके पास पैसा नहीं है और ऊपर से- दिमाग भी उसका करोड़पति की तरह चल रहा है, डिजायरें और ख्वाहिशें उसको भी पागल किए बैठी हुई हैं। तो वो सही तरीके से जो थक के आएगा ना, वो सही तरीके से रिलैक्स भी करे। जो टर्माइल में से होके आया है ना, वो इनर पीस से कनेक्ट भी आसानी से करेगा। तो इस टर्माइल को, इस एक्टिविटी को, इस आपकी जो मसरूफियात हैं, जो आपकी एक्शंस की दुनिया है, उनसे नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है, जिसने ये सारे मतलब निकालने हैं। आप ही होते हो, एक दिन आते हो ऑफिस से, कहते हो आज मज़ा आ गया है, बड़ा एनलाइटनिंग दिन था, हल्के फुल्के रहे। और आप ही होते हो दूसरे दिन आके कहते हो आज तो मुसीबत पड़ गई ऑफिस में, फलां से झगड़ा हो गया, फलां ने ये कह दिया, फलां 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 फलां। एक ही ऑफिस था, एक ही तुम बंदे थे, एक ही वही एनवायरनमेंट था, एक ही बॉस था, एक तरह के कलीग थे, एक दिन दूसरा दिन दूसरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने आज ये मतलब निकाला है, कल वो मतलब निकाला। तो ये जो मतलब निकाल रहा है ना, इसको थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है। ये सिंपल है। इनर पीस को मुस्तकिल करने का यही एक रास्ता है। पत्थर होने की कोशिश मत करें, परिंदा होने की कोशिश मत करें, दरख्त होने की कोशिश मत करें। जो है, जो आपके पास दस्तयाब एसेट्स हैं, उनको यूटिलाइज करना सीखें। बेहतर समझ आपके पास कोई भी टूल हो, उसकी बेहतर समझ होगी तो उसको आप शानदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक टूल है।